Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, the novel under discussion is The Old Man in the Sea, which is included in your syllabus as well. And this is written by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway was an American novelist, and this novel, particularly this novel, is a Nobel Prize winning novel. यानी से Nobel Prize best novel जो prize होता है, that is given over to him on this work. ठीक है. And what is the story about? Old Man in the Sea, as the very title suggests, that this is the story of a Cuban fisherman. Cuban से मुराद ये है कि he was living in Cuba and he belonged to Cuba and his profession was fishing and he was a fisherman. He was a Cuban fisherman. And then he was a seasoned fisherman, means he was very old and he was into all this profession since he was a child, and that's why he's a seasoned means he's an experienced fisherman. And he could not catch fish for 84 days. रीज़न क्या हुई, जहाँ से ये स्टोरी डेवलप होती है या स्टार्ट होती है, दैट इज़ इन फैक्ट द क्लाइमेक्स. वो क्या है, फॉर 84 days he could not catch any fish, and the people or the locality where he was living, all the fishermen, they started calling him Slough. स्लाउ मीन्स वेरी वेरी, मतलब कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री जो है एक बदकिस्मत इस इंसान की, हम उसको कहते हैं स्लाउ. एंड ही वॉज वेरी रेजोल्यूट एंड डिटर्मिन्ड एंड होपफुल पर्सन दैट ही नेवर लूज हार्ट. ठीक है, उसने दिल छोटा नहीं किया और ना ही उसने उम्मीद को छोड़ा. एंड ही वॉज वेरी रेजोल्यूट एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. वाई वॉज ही कॉन्फिडेंट? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हुक a very big fish, because he wanted to prove that he is not an unlucky man, because he wanted to prove the worth of a human being, and he wanted to prove that with a determination and resolution and with optimism a person can achieve whatever he wants, right? And then his optimistic, उसकी जो optimistic approach जो है, what was that? When the play starts, when he sets out on 85th day, ठीक है, for 84 days he could not catch any fish. When he was planning to go far out into the sea for catching a big fish on 85th day, there was a companion, there was a child over there, his name is Manolin, and when he was talking with him, he said that 85 is a lucky number. Means he was very positive, he was very optimistic, and he was very hopeful that on 85th day he would definitely be able to hook a big fish. That's why he decides to go far. वो फैसला क्या करता है कि वो बहुत दूर जाएगा. कहाँ जाएगा, क्या करने के लिए जाएगा? To try his luck. One should not lose one's hope, one should always be positive and optimistic, और उसको उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए, because every cloud has a silver lining. So he knew that he was not strong, but he knew many tricks. उसे मालूम था फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसको मालूम था he is a seasoned, he is an experienced fisherman and he has been into sea for so many years. That's why he knew how to hook a fish. And that's why he wanted to try his luck, and that's why he takes sardines as a bait with him. ठीक है, वो जो चारे के तौर पे, कुछ बेट्स के तौर पे जो है वो लेके जाता है अपने साथ. सार्डनीज ये छोटी मछलियाँ होती हैं जो कि बड़ी मछली, जब छोटी मछली को खाने आती है तो हुक हो जाती है. व्हाट डज ही डू ओवर देयर? उसने कहाँ कहाँ लाइन सेट की होती है, डोरियाँ वो छोड़, बहुत दूर समुंदर में निकलता है और वहाँ पे वो डोरियाँ छोड़ते हैं, यानी रस्सियाँ छोड़ते हैं. और वहाँ पे कितने कितने फैदम, ये जो होते हैं ना, ये मेजरमेंट्स होती हैं जो समुंदर की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है. 40 फैदम पे और 75 फैदम पे, 100 फैदम पे और 150 फैदम. ये आपने ज़रूर याद रखनी है इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ जाए, यू आर सपोज टू राइट, और दिस गिव्स वेरी पॉजिटिव एंड गुड इम्प्रेशन ऑन योर राइटिंग. ठीक है, फिर पता चलता है कि बच्चे ने सही से डिटेल से पढ़ा. 40 फैदम, 75, 100 एंड 150 फैदम, ये मुख्तलिफ जगहों पे, यानी इतनी गहराई पे उसने जो है बेट्स लगाई थी. बेट्स किस चीज़ की बनाई थी? सार्डनीज की. ही वॉच द डिप ऑफ द स्टिक्स, और उसने रस्सी जो है छोड़ी, समुंदर में छोड़ता रहा और बिल्कुल स्टेबल रखा, और स्टिक्स के साथ उसको, ठीक है, रस्सी तो डूब जानी थी ना, स्टिक्स लगाई थी जगह जगह पे. उससे अंदाज़ा होना था कि समुंदर में ये डूब जाती हैं, जो मछली पकड़ी जाएगी तो डेफिनेटली वो खींचेगी, और फिर वो जिस वाली
वाली रस्सी में जो है थोड़ी सी मूवमेंट पैदा होगी तो उसे आइडिया हो जाएगा कि ये इस वाली रस्सी को मैंने कंट्रोल करना है, ठीक है। ही ट्राइड टू कीप द लाइन स्ट्रेट, दैट्स वाई उसने अपनी जो रस्सी है उसको सीधा रखने की कोशिश की, ठीक है। और व्हाट ही डिड, ही वेंट फॉर आउट इनटू द सी, समुंदर में दूर, बहुत दूर वो गया। और उसका आइडिया क्या था, वो क्यों गया, उसकी अप्रोच पॉजिटिव थी और उसने इसीलिए कहा एवरी डे इज़ अ न्यू डे, हर दिन नया दिन होता है, हर दिन नई शुरुआत करनी चाहिए। दैट्स वाई ही गोज़ आउट विद अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच एंड ही सॉड, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ही saw birds over there and what were they doing, they were circling around and searching for a fish। परिंदे जो होते हैं वो भी मछलियाँ खाते हैं। मछली को एकदम से, मछली जब जंप करती है ना समुद्र में तो वो ऊपर से उठा लेते हैं। सो व्हेन ही सॉ दैट द बर्ड्स आर सर्कलिंग ओवर देयर, ही गॉट द आइडिया कि यहाँ पे कोई फिश ज़रूर होगी। सो ही सेज, जब वो देखता है, अपने आप से बातें करता है, बिकॉज ही इज़ ऑल अलोन ओवर देयर, नो वन इज़ देयर एंड ही वॉन्ट्स टू मोटिवेट हिमसेल्फ एंड दैट्स वाई ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, और से कहता है माई बिग फिश मस्ट बी समवेयर, वो कहता है मेरी बड़ी फिश ज़रूर कहीं ना कहीं है। आप पॉजिटिव होते हैं तो आप अचीव भी कर लेते हैं, जब आप नेगेटिव होते हैं तो आप कुछ भी करना चाहें आप नहीं कर सकते, ठीक है। पॉजिटिविटी आपको उम्मीद दिलाती है, होप दिलाती है और आप वो कर लेते हैं, ठीक है। ही फेल्ट स्मॉल ट्यूना पुलिंग ऑन द लाइन, उसे एकदम महसूस हुआ कि ट्यूना फिश जो है वो एक उसकी जो है रस्सी जो है उस पर थोड़ा सा ज़ोर महसूस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद सर्च उसकी सक्सेसफुल कैसी हुई, थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी, फिर वन बाय वन डिटेल से बताऊंगी। सो इन दिस स्लाइड आई विल टेल यू दैट व्हेन ही वाज वाचिंग हिज लाइंस, यानी रस्सियों डोरियों को देख रहा था, सांतियागो सॉ वन ऑफ द प्रोजेक्टिंग स्टिक्स डिप शार्पली, उसने देखा कि उसकी जो रस्सी है उसमें जो स्टिक्स बंधी हुई है वो एकदम से नीचे डूबना शुरू हो गई है, ठीक है। हेल्ड द लाइन सॉफ्टली, पहले उसने क्या किया, उसने आराम से नरमी से उस रस्सी को पकड़े रखा। फिर 100 फैदम डाउन अ मार्लिन वॉज ईटिंग द सार्डनीज, उसे लग रहा था कि कोई मछली है जो कि हुक हो रही है और 100 फैदम्स नीचे है, ठीक है। वो उससे बात भी करता है, फिश को, उसे कहता है ईट दैम फिश, प्लीज़ ईट दैम, वो उससे रिक्वेस्ट भी करता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रूव दैट ही इज़ अ ग्रेट फिशरमैन, ठीक है। उसे ह्यूमैनिटी के ग्रेटनेस को जाहिर करना था। दैट्स वाई उसे कहता है कि खा लो मछली। ही प्रेड टू गॉड हेल्प मार्लिन ईटिंग द बेट, और उसे वो अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये मार्लिन को मदद करे कि ये बेट खा ले, ठीक है। फिश वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंस एंड सो दैट शी वॉज हेजिटेंट, अब मछली भी छोटी मछली तो नहीं थी, बहुत बड़ी मछली थी। दैट्स वाई मछली ने भी बड़े ध्यान से, वो भी रिलक्टेंट थी, हेजिटेंट थी कि वो भी बचना चाह रही थी, अपनी ज़िंदगी बचाना चाह रही थी, इसलिए वो हुक नहीं प्रॉपर कर रही थी। सो द फिश एट द बेट एंड हैड फाइनली बीन हुक्ड, जब वो उसने आखिरकार मछली ने उसे खा लिया अच्छी से फ़िश को, तो क्या हुआ, उसके अंदर जो हुक लगा हुआ था उससे मछली जो है वो जल्द ट्रैप हो गई और वो हुक हो गई, पकड़ी गई, ठीक है। अब डिटेल से हम इसको देखते हैं। हुकिंग ऑफ मार्लिन, उसमें क्या हुआ, वन ऑफ द स्टिक डिप्स इन द वाटर, एक जो स्टिक होती है पानी, जो उसने रस्सी के साथ स्टिक्स बांधी हुई वो एकदम से तेज़ी से नीचे जाने लग पड़ी। देयर इज़ अ हार्ड पुल इन वन लाइन, एक जो उसको डोरी पे एकदम से सख्त, थोड़ा सा ज़ोरदार उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ खींच रही है। बिग फिश हैज़ बिन हुक्ड 600 फीट बिलो, और एक बड़ी मछली जो है वो तकरीबन 600 फीट नीचे जो है वो हुक हो चुकी थी। मार्लिन बिगिंस टू टो द बोट टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, और मार्लिन ने कश्ती को एक सिमत में दौड़ाना शुरू कर दिया, यानी जिस तरफ मछली जा रही थी उसी तरफ फिश भी वो कश्ती भी जा रही थी, बोट भी जा रही थी। सांतियागो होल्ड्स द लाइन टाइट अक्रॉस द शोल्डर एंड हेल्ड द बोट ड्रिफ्ट विद द फिश, और सांतियागो ने अपनी जारी बात, ही वॉज अ वीक मैन, ही वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसने क्या किया, रस्सी को अपनी कमर और कंधे के गिर्द जो है लपेट लिया, ताकि जिस तरफ मछली जा रही है उस तरफ जो है वो उसकी बोट भी जाती जाए, ठीक है जी। अब सांतियागो की स्ट्रगल क्या थी मार्लिन के साथ, क्या हुआ जब उसने पकड़ तो लिया, फिर उसको यही तो नहीं कि पकड़ हुक कर लिया और बस निकल आया, छोटी सी हाथ जितनी मछली नहीं थी, बहुत बड़ी फिश थी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट नाइट पासिस इन दिस कंडीशन, ठीक है, इसी वो उसने हुक कर लिया, पकड़ा हुआ है और वेट कर रहा है। अर्ली मॉर्निंग द लाइन बिगिंस टू स्लिप,
फास्ट फ्रॉम हिज हैंड। अगली सुबह उसके हाथ से जल्दी तेज़ी से रस्सी निकलना शुरू हो गई। अब उसने क्या किया, सांतियागो टाइज द रिजर्व कॉयल, जितने उसके पास रिजर्व कॉयल पड़े हुए थे वो सारे के सारे उसने उसके साथ बांध दिए। हिज राइट हैंड हैज़ बीन कट बाय द कांस्टेंट पुल ऑफ द लाइन, और उसका जो दायां हाथ था उस पर कट लग गया क्योंकि रस्सी जो है वो उसके हाथ में फिर रही थी मुसलसल, और मछली बहुत बड़ी थी और वो ज़ोर लगा रही थी। हिज हैंड्स बिगिंस टू ब्लीड, यहाँ तक कि उसके हाथ से खून भी निकलने लग पड़ा। सांतियागो बियर्स द पेन, और सांतियागो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहा क्योंकि उसका हाथ भी अकड़ गया था, क्रैम्प आ गया था उसमें। सो ही कंट्रोल्स एंड कंपोजेस हिमसेल्फ, अपने आप को रोक के रखता है। एंड ही कैचेस द साइट ऑफ द मार्लिन फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर इस दौरान जो है वो पहली दफ़ा मछली को देखता है, और फिर मछली से एड्रेस होके वो कैसे कहता है, उसे कैसे बात करता है, फिश आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे एंड्स। वो कहता है कि मछली, मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें मारना ही मारना है। सो सांतियागो इज़ डिटर्मिन्ड एंड ही सेज फिश आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड, जब तक मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूँगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। मीन्स ही वॉन्ट्स टू अचीव हिज टारगेट बट्स इन वट्स एवर कंडीशन, कुछ भी हो जाए, ही इज़ लाइक रेडी टू इवन गिव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी देने को लिए तैयार है। एंड ही इन्वोक्स होली मैरी एंड जीसस टू प्रे फॉर मार्लिन्स अर्ली डेथ, और वो इवन जीसस और मैरी से भी दुआ करता है कि उसकी जो मार्लिन है वो जल्दी से हुक हो जाए और मर जाए, ठीक है। और सेकेंड नाइट जब होती है तो फिर उसके बाद उसमें क्या, उस रात के वक्त वो क्या करता है, ही स्लीप्स फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए सोता है, ऊँग आती है। ही कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज देयर इज़ंट एनी वन हु इज़ ओवर देयर टू हेल्प हिम, कोई उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ पे नहीं है, और कोई और मौजूद भी नहीं है। ही इज़ ऑल अलोन, अगर वो सो गया और बिल्कुल ढीला पड़ गया तो क्या होगा, फिश निकल जाएगी। सो ही स्लीप्स फॉर वाइल बट नॉट कह लें, थोड़ी देर उसने ऊँगा। और उसमें ख्वाब में क्या देखता है, ही हैज़ ड्रीम्स ऑफ लायंस ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ख्वाब में वो शेरों को देखता है, ठीक है। आम ऑर्डिनरी किस्म के ख्वाब नहीं होते उसके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्वाब होते हैं। एंड इन दैट ही सीज लायंस एंड from that dream of lions, what he gets strength, उसको ताकत मिलती है from these dreams, and he wants to prove himself a very successful person. And then on the third day, what happens over there? In the third day, Marlin repeatedly jumps high and slowly encircles Santiago's skiff. अब third day में, तीसरे दिन, look at this, that how determined he was and how strongly he was fighting. और मार्लिन के साथ वो बार बार जंप कर रही थी, हवा में जंप करती थी तो उसे नज़र आता था, और स्लोली इनसर्कल कर रही थी, और सांतियागो की स्किफ भी घूमती थी उसके साथ। सांतियागो गेन सो मच लाइन दैट ईच नेक्स्ट सर्कल ऑफ द फिश इज़ शॉर्टर देन द प्रीवियस, और इस वजह से क्या होता है कि हर दफ़ा जैसे जैसे मछली घूमती है तो उसका सर्कल फिश का छोटा होता जा रहा है। यानी पहले तो रस्सी दूर तक थी, फिर जैसे घूम के आती थी वो रस्सी को लपेटता जाता है, तो फिश जो है वो अब स्किफ के यानी बोट के करीब आती जा रही है। एट लास्ट सांतियागो ड्राइव्स द हार्पून इन द ब्रेन, यहाँ तक कि फिश काफ़ी करीब आ जाती है तो उसके पास जो नेज़ा होता है ना, नेज़ा वो मछली के मार्लिन के कहाँ मारता है, दिमाग में मारता है, ब्रेन में, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है, मार्लिन क्या करती है, शी लीप्स एंड फॉल्स डाउन, वो हवा में एकदम से जंप लगाती है और नीचे गिर जाती है। इट इज़ अ 2 फीट लॉन्गर देन द स्किफ, उसकी जो कश्ती होती है ना उससे भी कितनी लंबी है, 2 फीट लंबी है, 2 फुट लंबी है, और उसका वेट कितना होता है, 1500 पाउंड, 1500 पाउंड उसका वेट है। यानी इट वॉज सो जाइगेंटिक किस्म की वो फिश थी। एंड आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 48 आवर्स सांतियागोज प्रूव्स विक्टोरियस। अब जो है इतनी 48 आवर्स, 48 आवर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, उसमें जो है वो अपने आप को फातेह साबित करता है। सो दिस इज़ इनफ एंड आई हैव ट्राई टू कवर हाउ he went out for hooking the marlin and how he hooked and how he struggled with the marlin, ठीक है। this is the first half of the novel, and in the next video I'll talk about his encounter with the sharks, right? I hope I have tried to clear the points, and best of luck girls. Allah Hafiz, have a good day.